Bismillahirrahmanirrahim. Senior consultants and dear colleagues, Assalamu alaikum. I am Dr. Munira Ali, pediatric consultant and neonatologist appointed through Shifa Foundation. The topic of presentation is enteric fever. First of all, I would like to go into some pathogenesis and physiology and some resistant cases, so we should know the nutshell of enteric, so we can treat according to that. Enteric fever is collective term referred to both Salmonella typhi and paratyphi. Salmonella enterica is common causative agent and other are paratyphi like serotypes A, B and C. Route of infection is orophycal route, and this is like when we ingest a pathogen, it survives the gastric acid, then moves into small bowel where it penetrates through the epithelium, enters the lymphoid tissue, separates through lymphatics or hematogenous separate is common. It is a human restricted pathogen. It means that it is restricted to human beings where it replicates and causes the disease and pathogenesis. And typhoid organism has a great evolutionary history since many years. MDR, which is genotype H58, emerged in 1980, and XDR recognized in Pakistan in 2016. I will go into the details of MDR and XDR in next slides. Sure. Factors affecting the disease. First is infectious dose. In a healthy person who has no any previous disease and immunity is good, the total infectious dose is greater than 10 into 3 CFU, colony forming units. And in the cases of ecloredia, immunocompromised patients like AIDS and patients of the tuberculosis, the less doses are required to cause the disease. There is less than 10 into 3 CFU. Systemic spread and persistence. Radiculoendothelial spread is the hallmark of enteric fever, responsible for sepsis and hepatosplenomegaly. That's why when a patient presents with fever and hepatosplenomegaly, we mostly think this is an XDR case and we have to treat from extreme point. And the third is host immunity. It depends the immunity of a person. If the immunity is good, then disease hallmark can be less, but the immunity is less, then it will cause serious complications. There is a term also called chronic carriage, excretion of organism in stool or urine for greater than 12 months. Most common with adult females with cholelithiasis and biliary tract anomalies. इसके पीछे रीज़न ये है कि when there is cholelithiasis, the gallstones applied a medium for growth of the organism and they continuously excrete in the stool. So they become the chronic carriages, and they themselves are less affected, but they transfer the disease to others. Like chronic carriers have immunological equilibrium. जिसका मतलब है there are large colonies in their gut, but they have high immunity but clinically asymptomatic peoples. Epidemiology. Worldwide, enteric fever is most prevalent in impoverished areas that are overcrowded with poor access to sanitation. South Central Asia, Southeastern Asia and Southern Africa are a region with high incidence of Salmonella typhi infection. There are more than 100 cases per 100,000 person per year. Age of presentation is 6 months to 14 years. जो अब तक की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ये अप टू डेट है. The clinical feature mostly present with us a febrile illness with onset of symptoms 5 to 21 days after ingestion of the causative microorganism. In the first week, they present with rise in stepwise fever and bacteremia, while chills are the typical feature and the rigors are absent. Second week, abdominal pain and they develop rose spots. The patient may present with the rose spot rash and they may complain of the abdominal pain. In the third week, hepatosplenomegaly and intestinal bleeding and complications, perforation together with secondary bacteremia and peritonitis. Septic shock and altered level of consciousness, that is called enteric encephalopathy, may present in the third week. Cough is not rare and has been observed in approximately 20 to 45% of the patient. Arthralgias and myalgias occur in about 20% patient.
Typhoid encephalopathy with altered consciousness, delirium and confusion is 17%. What laboratory abnormalities we will see in a patient with enteric? Frequently they have anemia with either leukopenia and leukocytosis. According to fresh guidelines, the leukopenia is common in adult patient but leukocytosis in child patient, pediatrics. But we mostly seen leukopenias and pancytopenias were present in with enteric fever. Leukocytosis is more common in children. If observed in the 3rd week of illness, leukocytosis should prompt suspicion of intestinal perforation. अगर एक पेशेंट आपका फीवर के साथ है, एब्डोमिनल पेन है और आप देख रहे हैं कि उसमें लीकोसाइटोसिस है, देन वी शुड सस्पेक्ट द इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दैट एंटेरिक. एक्चुअली ज़्यादातर ये होता है कि हम लीकोसाइटोसिस हो तो कुछ और सोच रहे होते हैं, बट पेशेंट की प्रेजेंटेशन इस तरह हो सकती है. एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट, जो 2 इम्पोर्टेंट टेस्ट हम शुरू में करवाते हैं वो CBC कंप्लीट ब्लड पिक्चर एंड LFTs है. सो ALT इज़ आल्सो रेज्ड इन द एंटेरिक पेशेंट, जो कि हम उस एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के साथ कभी कभी हम मिक्स कर लेते हैं. ऑल द जो इसकी कंपैरिजन इन्होंने दी थी, जो एंटेरिक है उनमें अप टू 300 तक जा सकता है, 296 के रेंजेस है, बट एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में वो अबव थाउजेंड्स में चला जाता है. तो ये आपकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है. Although non-specific serum reactive protein is often elevated, CRP तो एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है, वो किसी भी इन्फेक्शन में आपका रेज्ड हो सकता है, तो इसको हम स्पेसिफिक नहीं लेते, बट ये भी रेज्ड होगा. CSF, अगर कोई एंटेरिक का पेशेंट हमारा एन्केफेलोपैथी के साथ आता है, तो इफ़ वी गो फॉर CSF देयर आर यूजुअल नॉर्मल और रिवील अ माइल्ड पिलियोसाइटोसिस. हाउ टू डायग्नोज? फर्स्ट इज़ क्लिनिकल अप्रोच. मोस्टली पेशेंट की जब भी हमने उसे असेस करना होता है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गाइडेंस एंड फर्दर लेब्स. Enteric fever should be suspected in a febrile patient living in, traveling from or visiting from the endemic area, particularly if the duration of the fever is more than 3 days. कभी हम सोचते हैं कि 7 days तक सोचते हैं, लेकिन अब इन्होंने कट लाइन दी है कि 3 days का फीवर है, स्टेप वाइज है, हाई ग्रेड है, तो आपने एंटेरिक सोचना है. अगर एंडेमिक एरियाज है, जैसे हमारे यहाँ पे चिलास और दियामर के रीजन से पेशेंट बहुत आते हैं, तो हमारा फर्स्ट डिफरेंशियल वही बनता है कि कहीं एंटेरिक तो नहीं है. बिकॉज इन एंटेरिक, इफ़ यू आर सस्पेक्ट इन एंटेरिक, अगर बाकी कोई इलनेस की आपके पास एविडेंस नहीं है, तो गाइडलाइंस कहती है कि आप एज अ एंटेरिक इसको ट्रीट करें, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट शुरू करें आफ्टर सेंडिंग द ब्लड कल्चर. डायग्नोस्टिक टूल ब्लड कल्चर्स आर पॉजिटिव इन 50 to 70%. स्टूल कल्चर इज़ पॉजिटिव अप टू 30 to 40% ऑफ द केसेस. Bone marrow culture is the most sensitive diagnostic modality, but is rarely indicated in routine clinical practice. 90% जो होता है हमारे पास बोन मेरो होता है. कल्चर ब्लड की भी 50 to 70% है. हमारे पास भी शुरू में ये होता था कि पेशेंट टिपिकली क्लिनिकली सारे फीचर एंटेरिक में आते हैं, लेकिन नो ग्रोथ आ रही होती है. एक तो ये है कि इसकी सेंसिटिविटी 50 to 70 है. दूसरा ये है कि हमारे पेशेंट जो है ना एंटीबायोटिक्स लेके आते हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि जब पेशेंट एंटीबायोटिक्स लेके आते हैं, तो जो इन्फेक्शियस डोज होती है ब्लड में, वो ब्लड के कल्चर रिपोर्ट से कम होती है, तो मोस्टली डिपिक्ट नहीं हो सकती. तो आपने फिर कल्चर पे भी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना. क्लिनिकली पेशेंट की असेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट हम ले सकते हैं कल्चर्स के लिए, सबसे पहले ब्लड है, उसके बाद एंटीजन्स होते हैं 2nd वीक में, लेकिन वो अभी ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, क्योंकि जो विडाल टेस्ट है जिसमें हम एंटीजन टेस्ट करते थे, एंडेमिक एरियाज़ में ये होता है कि अगर प्रीवियसली उसको इन्फेक्शन हुई है तो वो आपके पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन आपके पास कोई और एविडेंस, कोई लेब अवेलेबल नहीं है, या आप डॉक्यूमेंटेशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप विडाल कराते हैं तो वेरी हाई टाइटर शुड बी प्रेजेंट कि आप उसको अगर लेबल करते हैं, लेकिन अब ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है पाकिस्तान से. उसके बाद आता है स्टूल कल्चर. 3rd वीक में जो इम्पोर्टेंट होता है स्टूल कल्चर होता है. आफ्टर स्टूल कल्चर 4 वीक यूरिन कल्चर है, एंड द नेक्स्ट इज बोन मेरो, एंड द 5th जो न्यू मॉडलिटी आजकल आई है गैस्ट्रिक ड्यूडेनल एस्पिरेट्स के हम कल्चर्स करते हैं, उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें एंटेरिक पॉजिटिव आ सकता है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और गोल्ड स्टैंडर्ड. ये 5-6 कल्चर्स है हमारे. Management of the enteric is a question and challenging for us in endemic areas.
चैलेंज इसलिए है कि हमारे यहाँ पे पेशेंट सबसे पहले तो डिस्पेंसरी से सेफेक्साइम लेके आते हैं, एजिथ्रोमाइसिन उन्होंने ले ली होती है, सेफ्ट्राइजोन के भी 5 डोजेस लग चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। एक तो उन्होंने लेस डोज में ली होती है और मल्टीपल एंटीबायोटिक्स ली होती है रिकरेंट एपिसोड में, तो उन्होंने फिर हमारे लिए बहुत चैलेंज होता है। तो मैंने कोशिश की है कि जो अप टू डेट की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से मैं बनाऊँ ताकि हमारे लिए कोई गाइडेंस हो आगे। Complicated enteric need admission and use of parenteral antibiotic. Ceftriaxone is the first choice and alternative is cefotaxib. गाइडलाइंस कहती है कि सेफ्ट्राइक्सोन आपकी फर्स्ट चॉइस है, अल्टरनेटिव सेफोटेक्सिम है, लेकिन जो सेफ्ट्राइक्सोन की रेजिस्टेंस भी आजकल एवॉल्विंग है पाकिस्तान में, तो नेक्स्ट फिर हमारा ऑप्शन कार्बेनिपम्स है लाइक मेरोपिनम, इमिपिनम एंड दूसरे। If there is suspicion of ceftriaxone resistance, meropenem that are carbapenems can be used while awaiting susceptibility testing. विदाउट कल्चर आपने कोई ट्रीटमेंट सेकंड ट्रीटमेंट नहीं देनी। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट आपने अपने एरिया के जो रेजिस्टेंस है और ससेप्टिबिलिटी आपकी जो प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके हिसाब से शुरू करानी है। स्टेबल पेशेंट कैन बी सेंड होम ऑन ओरल ट्रीटमेंट विद प्रॉपर फॉलोअप। जो एंटेरिक का फीवर होता है वो आपके 3 to 5 डेज़ के बाद रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है डिक्रीजिंग पैटर्न में, फिर फ्रीक्वेंसी कम होगी, फिर इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो अपने पेशेंट को गाइड करना है, साथ में प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं। फॉर पेशेंट विद अनकम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर ड्यू टू एन आइसोलेट नॉन और सस्पेक्टेड टू हैव इंड्यूस्ड फ्लोरोक्यूनिस susceptibility including patient infection acquired in Pakistan, we suggest azithromycin. जो इनके स्टडीज़ है उसमें फ्लोरोक्यूनोलोन्स पे भी इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उन्होंने इसमें ये कहा कि फ्लोरोक्यूनोल को एडल्ट में सेंसिटिव है लेकिन चाइल्ड में इसकी सेंसिटिविटी कम आई है। और आपका एरिया ऐसा है जिसमें आपकी सेंसिटिविटी कम है और आपका कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, तो सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन हमारे पास ऑप्शन है जो आप ओरल शुरू करा सकते हैं। I would like to go into some antibacterial resistance जो हमारे MDR, XDR से, ताकि हम आइडिया हो कि नेक्स्ट क्या करना है। Treatment of enteric fever has been complicated by the development and rapid global spread of typhoid organism, resistance to ampicillin, trimethoprim, chloramphenicol. Additional development of increasing resistance to fluoroquinolones and cephalosporin is a growing challenge. फर्स्ट इज़ फ्लोरोक्यूनोलोन रेजिस्टेंस। इनिशियल ये होता था कि फ्लोरोक्यूनोलोन जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एम्पिसिलिन ये देते थे, लेकिन अब इन चीज़ों की कोई सेंसिटिविटी नहीं रही। CLSI है जो अमेरिकन लेबॉर्ट्री है, उनके गाइडलाइंस के मुताबिक सिप्रोफ्लोक्सेसिन MIC लेस देन 0.06 माइक्रोग्राम पर ml एंड लियोफ्लोक्सेसिन लेस देन 0.12 माइक्रोग्राम आर ससेप्टेबल। अगर ऑर्गेनिज्म की डोज इन्फेक्शियस डोज इतनी कम, इससे कम है तो फिर वो इफेक्ट होगा, सुपर वाले पेशेंट में ये इफेक्टिव नहीं है। अब इस लेवल पे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो फिर ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। टाइफाइडल सैल्मोनेला स्टेन्स विद MICs अबव दीज थ्रेशोल्ड में बी एसोसिएटेड विद क्लिनिकल फेलियर, डिलेड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट विद फ्लोरोक्यूनोलॉन्स। Second is ceftriaxone resistance. In particular, ceftriaxone resistance is increasing. Multiple reports of ceftriaxone resistant infection mediated by the acquisition of drug-resistant plasmids such as INCX3 have been reported from Pakistan and India. जो एंटेरिक फीवर है वो ऑर्गेनिज्म है सैल्मोनेला एंटेरिका, उसके मल्टीपल जीनोटाइप्स है, फिनोटाइप्स है, उसने अपने आप को इतनी इवोल्यूशनी बनाया है कि हर एंटीबायोटिक के लिए उसने रेजिस्टेंस क्रिएट की है। तो उसमें जितनी जेनेटिक लेवल पर स्टडीज़ हुई है उनमें से एक जो INCX3 है वो सेफ्ट्राइक्सोन रेजिस्टेंस कराएगी। एजिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस है। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ एजिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस बाय E-test 64 microgram in Salmonella paratyphi resulting in treatment failure was reported in a travel returning from Pakistan to Britain. अब ये जेनेटिक लेवल के स्टडीज हमारे नहीं होते, वहाँ स्टडी हुई, तो ये सबसे पहले पाकिस्तानी में हुआ रेजिस्टेंस आई है एजिथ्रोमाइसिन की। Multiple drug resistance MDR strains. What are MDR strains? In those resistant to ampicillin, trimethoprim and chloramphenicol are prevalent worldwide. Though they have been in decline as other antibiotics have been more widely used for treatment. जैसे मैंने पहले बताया कि ये फर्स्ट लाइन थे पहले, अब इनको कम कर दिया क्योंकि दूसरे जो सेकंड और थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स है उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इसको रेजिस्टेंट है दे आर कॉल्ड MDRs.
और ये MDR 1980 में सबसे पहले इस पर स्टडी हुई थी, जो मैंने पीछे बताया। XDR, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। Extensively drug resistant strains those resistant to 5 antibiotics. They are ampicillin, trimethoprim, sulfamethoxazole, chloramphenicol, fluoroquinolones, and a third generation cephalosporins has been described. In 2016, a large outbreak of typhoid fever in Pakistan was occurred by strain resistant chloramphenicol, fluoroquinolones, and third generation cephalosporin. By the end of 2018, more than 5,000 cases of XDR has been reported. In 2020, several XDR typhoid cases in individual with no prior international travel was reported. ये उन्होंने अपनी कोई स्टडी बताई थी। Beside antibiotic, first treatment is antibiotic. Other adjunctive treatment which can given to be enteric patient, adjunctive corticosteroid for severe infection. What is the indication of the steroids in enteric? The first is typhoid encephalopathy, when the patient become with stupor, shock, delirium, and then there is the indication. And the dose dexamethasone is the choice of drug. Dose is 3 mg per kg followed by 1 mg per kg every 6 hours for total of 48 hours. हमारा ये भी प्रैक्टिस होता है कि हम स्टीरॉइड लिखते हो देते हैं, लेकिन प्रॉपर डोज और प्रॉपर ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेक्सामेथासोन खुद भी इम्यूनो कंप्रेशन कराती है, तो फिर आपके एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस भी फिर ज़्यादा आ सकती है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। पेशेंट विद आइलियर परफोरेशन, treatment of ileal perforation warrants surgical therapy in addition to antibiotic therapy to cover both enteric fever and enteric organism. अगर आपका पेशेंट एक परफोरेशन के साथ आता है तो आपने एंटेरिक की ट्रीटमेंट भी देनी है और उस गट ऑर्गेनिज्म को भी ट्रीट करना है उस वक्त। एंटेरिक परफोरेशन की पैथोलॉजी ये है कि जब गैस्ट्रिक एसिड से ड्यूडेनम और आइलियम में टाइफाइड इंटर होता है, पेयर पेजेस की हाइपरट्रोफी होती है विच जो आइलियम और एपिथेलियम को वीक कर देता है, देन इट काजेस द परफोरेशन। बाकी सर्जिकल उनका परफोरेशन की ट्रीटमेंट सही आती होगी सर। एंटीबायोटिक एंडोसिस, ये दूसरी स्लाइड लानी थी एक, हाँ बस हो गया। ये डोजेस में बताना चाहूँगी थोड़े से। इसमें एडल्ट और चिल्ड्रन के डोजेस दोनों के लिखे हुए हैं। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर एडल्ट में दे रहे हैं तो द डोज इज़ 500 mg ट्वाइस डेली, ड्यूरेशन इज़ 7 to 10 days, and in children 30 mg per kg per day in divided doses and maximum is 1000. अगर IV दे रहे हो तो 400 mg twice daily. Ofloxacin 400 mg orally or IV twice daily. The duration is 7 to 10 days. The dose of this ceftriaxone, जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है, 2 gram adults IV once or twice daily, and in children 50 to 100 mg per kg IV in 1 or 2 divided doses, maximum 4 gram per day. AKU की जो आई थिंक 2 years पे गाइडलाइंस आई थी, एजिथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस आई थी, तो इस पे काम उन्होंने किया था। उन्होंने सेफ्ट्राइजोन की डोज बस उन्होंने कहा था कि आपने 100 से ही देनी है, इसके अलावा कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। 50 तो इसकी जो मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम इज़ 100 एंड द 100 इज़ एक्यूरेट फॉर द एंटेरिक एंड द ड्यूरेशन इज़ 10 to 14 days. Cefotaxime can be given, it's 1 to 2 gram IV every 6 or 8 hours for adults and 150 to 200 mg per kg IV per day in 3 to 4 divided dose, maximum 8 gram per day and 10 to 14 days. Cefixime, which is the oral therapy, 200 mg orally twice daily for adults, and in the children 20 mg per kg orally in 2 divided doses, maximum 400 mg per day, and the duration is 10 to 14 days. Azithromycin in adults 1 gram orally once, then 500 milligram orally daily or 1 gram orally once daily. In the children 10 to 20 mg per kg orally once per day and 5 to 7 days. The duration for azithromycin is 5 to 7 days. बाकी जो भी है उनके 10 to 14 days है IV. And the last meropenem 1 to 2 gram IV every 8 hours
and in children 20 to 40 milligram per kg every 8 hours, maximum is 6000 milligram per day, and the duration is 10 to 14 days. Agents of limited usefulness due to high prevalence of multi-MDR, chloramphenicol, amoxicillin, trimethoprim, ये इफेक्टिव नहीं रहे हैं. सो द मैनेजमेंट प्लान इन अ नटशेल, सबसे पहले आपने पेशेंट को क्लिनिकली असेस करना है, उसके CBC एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्लड कल्चर भेजना है, एंड एम्पेरिकल ट्रीटमेंट should be started according to your area, either it is endemic, non-endemic, and its sensitivity, previous culture reports, and according to the patient response, because the important thing is infectious doses, host immunity, and the drug susceptibility. After treatment is the important thing is prevention. Prevention, hygiene, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फूड एंड वाटर सप्लाई. पेशेंट को हम एंटीबायोटिक लिखते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं, बट वी डोंट टेल देम अबाउट दी हाइजीन एंड वाटर एंड पानी बॉयल करके इस्तेमाल करना है. पेशेंट के टाइफाइड वाले पेशेंट के बर्तन अलग रखें, साफ़ रखें, हम हाइजीन अलग करें, स्पेशली सैनिटरी मेजर्स को ठीक करें. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वैक्सीनेशन. नाउ देयर इज़ अ वैक्सीनेशन फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन. जो चिल्ड्रन में होता है पॉलीसेक्राइड वैक्सीन होती है, एक डोज होती है, आफ्टर 6 मंथ्स देनी है. सिंगल डोज आप दे सकते हैं, IM देते हैं, और दिस शुड बी रिपीटेड आफ्टर 3 to 5 years अगर आपके एरिया में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो. अदरवाइज ये 3 to 5 years तक इसकी प्रिवेंशन है. दूसरा जो एडल्ट में होता है, दे आर ओरल वैक्सीन कैप्सूल्स होते हैं, दे आर लाइव वैक्सीन, दे हैव 4 doses ऑन द अल्टरनेट डे, 4 डोजेज देनी है अल्टरनेट डे पे, और वो भी एक सिंगल उसमें देना है. आफ्टर 3 to 5 years आपने उसकी रिपीट करनी है. सारे बच्चों के अवेलेबल है, कैप्सूल का मुझे कंफर्म नहीं है. बच्चों के इधर हमारे EPI में भी अभी ऐड हुआ है, तो वो 6 months पे EPI में भी लगाते हैं एक डोज. शायद मेरे ख्याल से ओरल भी अवेलेबल है. आई हैव कलेक्टेड सम रिपोर्ट्स फ्रॉम आवर लेबॉर्ट्री. जो हमारे पास पेशेंट है, हमारे जो पेशेंट आते हैं तकरीबन महीने के 50 हमारे एंटेरिक आते हैं, उनमें से तकरीबन 10 से 12-15 तो हमारे XDR ही आते हैं. पिछले वीक में जब मैंने रिपोर्ट्स कलेक्ट किए तो हमारे जो एक वार्ड में है, वार्ड के 5 में से 3 मरीज़ XDR थे हमारे, और उनका रिस्पांस भी यही था. आफ्टर 5 days उनमें थोड़ी सी चेंजिंग आई, उसके बाद 10 day पे जाके उनका फीवर सेटल होता है, एंड वी हैव टू वेट फॉर 3 to 4 days ताकि रिलेप्स ना हो. अच्छा, मेजर जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है आपके, जो प्रोलॉन्ग कॉम्प्लिकेशन में, एक तो रेजिस्टेंस है, दूसरा रिलेप्स है एंटेरिक का. तो रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया. जो रिलेप्स है, अगर पेशेंट आप ट्रीट करते इवन 10 to 14 days के लिए एंडेमिक एरियाज़ में, आप उसे डिस्चार्ज करते, वो आफ्टर 2 to 3 weeks दोबारा आता है उन्हीं सिम्टम्स के साथ. बट अगर अनकम्प्लिकेटेड है तो उसकी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स अच्छा है, ही विल रिस्पॉन्ड इन 1 week अगेन थेरेपी, उसी थेरेपी के साथ. लेकिन कम्प्लिकेटेड है तो वो फिर कम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने पड़ेंगे. ये हमारे कुछ कल्चर है जिनमें हमारे XDRs आए हैं जो सिर्फ मेरोपेनम को सेंसिटिव है. हमारी कोई सेंसिटिविटी एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्राइजोन को नहीं आ रही है, सारे मेरोपेनम को आ रहे हैं. इन्होंने लिखा है मेरोपेनम है, बस ये सारे कार्बेमेरोपेनम से जो सेंसिटिव होते हैं. आज हमारे वार्ड में भी जो 3rd floor है तकरीबन हमारा मेरोपेनम है, जिनको पेशेंट रिस्पॉन्ड कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे. थैंक यू. Thank you, sir.